Hi friends, so in this video we are going to study about the human geography first chapter. Um, you know that we already have studied about the human geography, that what is the human geography. There are some definitions given by the geographers or the famous uh, scholars. So some of them are, if we see the first definition of the human geography, that is the human geography is the synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface. So it is the synthetic or the synthesis. Synthesis means the combination of ideas from the theory and system. So this is the human geography is the uh, combination of ideas, uh, the studies of the combination of ideas of the relationship between human society and अर्थ सरफेस मतलब जो जब जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ के बीच की जो स्टडी करती हैं that is the combination of ideas. It combines the different ideas of the relationship between the human society and the Earth's surface. This definition is given by Red. Another definition that is given by Alan C. Sample, that is the human geography is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. So we know that the man is always unresting, means the people or the human being always try to innovate, always try to find and discover the new things. He cannot, the human being cannot be satisfied whatever he is having. He always try to get the new things, try to find out the new things, try to equally the earth is also not stable. The earth surface, the process on the earth, they are always changing. So this geography is the study of the changing relationship, because whenever the along with the time, along with the period and means when the means place to place, the relationship between the man and the earth also changes. So this is the dynamic relationship according to the Allen C. Sample definition. Or we can say that the human geography is the dynamic study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. So dynamic means the which is always progressive and which is not stable, or the passive which is always active. तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है कि ये हमेशा इसमें डायनेमिक्स होता है, हमेशा चेंज होती है, हमेशा एक्टिव रहती है, प्रोग्रेसिव होती है, बिकॉज द change the relationship between the man and the earth also keep changing. Now नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का वो क्या नेचर है, किस तरह का इसका नेचर है. तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी इन दिस वी हैव ऑलरेडी learned about this, that human geography studies the interrelationship between the physical environment and the social cultural created by human beings through the mutual interaction with each other. There is the mutual interaction. ऐसा नहीं हो है कि without boundaries the human cannot interact with the earth surface or with his environment. So it is the study the human geography studies the interrelationship between the physical environment and the social cultural environment created by human beings. जो कि जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट है, वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, और विच इज द म्यूचुअल
इंट्रैक्शन। नेचुरल इंट्रैक्शन मीन्स ऐसा नहीं है कि इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी अर्थ के साथ में कर सकता है, उसमें एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है। अगर if the interaction is not mutual, it will lead to the devastating incidents, just like the अगर इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेता है, बड़े बड़े गेम्स बना देता है without understanding the nature, then it can cause the floods and the earthquakes and many other things. तो अगर इंसान अर्थ को बिना समझे, को बिना समझे उसके साथ में रहते छेड़छाड़ करता है या जो उसके साथ में इंस्ट्रक्शन करता है, तो एक डिवेस्टिंग इंसिडेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। Now, we know that in the human geography, in the physical geography, we study about the elements of the nature, in the elements of the environment. Those are the landforms. Uh, Elements are the landforms, soils, climate, water, natural vegetation, and diverse flora and fauna. All these are the elements of the physical geography. Equally, there are some elements about them we study in the human geography, and those are the elements of the human geography are the houses. So in the अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम उसके अंदर हाउसेस के बारे में स्टडी करते हैं, विलेजेस गाँव के बारे में, सिटीज, रोड, रेलवे नेटवर्क्स, इंडस्ट्री, फार्म्स, ports, items of our daily use, all other elements of the material culture have been created by the human beings using the resources provided by the physical environment. So ये है human geography के elements, and all these elements are created by the human being. ये सारे के सारे जो houses, villages, cities, railways, industries, farm, ports, ये सब इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, and these are created by human beings by the resources provided by physical environment. तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो इन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. While physical environment has been greatly modified by humans, it has also in turn impacted the human life. अगर ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन बीइंग्स फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है, जैसे घर बनाता है, नदियाँ बनाता है, नहरें बनाता है, या और भी चीजें, इंडस्ट्रीज बनाता है, तो व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग डूइंग, जो इंसान क्या कर रहा है, दैट इज चेंजिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट. साथ में ही अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द, और दैट ऑल्सो मॉडिफाई द ह्यूमन लाइफ. अगर रेगिस्तान में इंसान रहता है तो उसको बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, सॉरी फिजिकल एनवायरनमेंट, वो अलग तरह से रहता है, उसकी एक्टिविटीज अलग होती है, उसका लाइफ स्टाइल अलग होता है. वैसे अगर माउंटेन्स के अंदर जो इंसान रहता है उसका अलग होता है. तो व्हाट इज डूइंग in the human being is modifying the physical environment, and physical environment is also impact the human life. It is greatly बहुत ज़्यादा impact करता है. In the earlier times, especially in the earlier time, the human means the human life was completely impacted by the फिजिकल एनवायरनमेंट. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उसका जो ह्यूमन लाइफ पे जो नेचर का इम्पैक्ट है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, वह कम होता जा रहा है. तो इसको हम बोलते हैं, जैसे जब व्हेन एवर द फिजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट द ह्यूमन बीइंग्स, इट इज कॉल्ड द नेचुरलाइजिंग ऑफ द ह्यूमंस. मतलब there are the two terms that we came across, naturalizing of the humans and the humanizing of the nature. इन दोनों का मतलब इसी एक सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है. अगर हम इसको समझते हैं, ये है यहाँ पे, देखिए इसको ध्यान से पढ़े. While
physical environment has greatly modified the human being. It is called the naturalization of the humans. जब नेचर इंसान को अपने अकॉर्डिंग ढालता है तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमंस, मतलब नेचर इंसान को अपने अकॉर्डिंग ढालता है. एंड वेन एवर इन द सम अदर केसेस, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले हम डेजर्ट की बात करें तो पहले इंसान गर्मियों में जैसा इन्वायरमेंट होता था उसी के हिसाब से उसको रहना पड़ता था. अगर गर्मी है तो वो गर्मी में कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकता था, या ट्रेवल नहीं कर सकता था, इधर उधर नहीं आ जा सकता था, खेती नहीं कर सकता था. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो क्या किया, डेजर्ट के अंदर नहरें बना दी, फार्मिंग के जो एग्रीकल्चर उसके नए नए तरीके खोज लिए. तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जो उसके जो नेचर का इम्पैक्ट है ह्यूमन के ऊपर उसको कम करता जा रहा है, और वहां पे उसको नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढालता जा रहा है. जैसे ये इंसान की जो जरूरत है नेचर में उस तरह का चेंजेस करता जा रहा है. तो इसको बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. मतलब जब नेचर इंसान को अपने अकॉर्डिंग ढालती है, जैसा कि हर जगह डालती है, क्योंकि जिस जगह जैसा नेचर होगा वहां पे इंसान को उसी तरह से रहना होगा. और जब टेक्नोलॉजी के साथ में इंसान नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढालने लग जाता है तो देखिए होता है ह्यूमनाइजेशन द नेचर. So let's little bit in detail. It is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and technologies do they produce and create. So human beings interact with their physical environment with the help of टेक्नोलॉजी. जो ह्यूमन बींग्स है वह अपना फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किसके की हेल्प से इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से. दैट्स व्हाई इट इज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि इंसान क्या बनाता है, लेकिन वो किसकी मदद से और किस टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें बनाता है या प्रोड्यूस करता है, वो एक इम्पोर्टेंट बात है. तो ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी. और इंसान जो टेक्नोलॉजी किस तरह से बनाता है, किस तरह से कब इंसान टेक्नोलॉजी बना सकता है, when the human being has the better understanding of the physical environment और the natural laws. तो नेचर के जो लॉज है, तो अर्थ के जो नियम है, अगर उनके बारे में इंसान बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा, अगर उनको इंसान समझ सकता है, तभी इंसान कोई टेक्नोलॉजी बना सकता है. अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो फायर इंसान ने किस तरह से इन्वेंट किया, डिस्कवर की, व्हेन ही अंडरस्टैंड द फ्रिक्शन एंड द heat of the nature, because friction and heat is always available in the nature. So when he understands the concepts of the friction and heat, he was able to discover the fire. तो क्या हुआ, इंसान ने पहले नेचर को समझा. अगर इंसान नेचर को समझने में एबल नहीं है या वो इसको नहीं समझ पाता है तो कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं कर सकता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता है. जैसा कि जब इंसान ने नेचर के जो लॉज हैं, तो नेचर के जो नियम है, फ्रिक्शन और हीट, जब उसके बारे में समझा तो इंसान ने आग को डिस्कवर कर दिया. सेम वैसे व्हेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए. तो डीएनए का क्या चीज है, डीएनए इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो व्हेन एंड इट इज नेचुरली अवेलेबल in everything. So understanding the secrets of DNA and genetics enabled us to conquer the many diseases. जब इंसान ने डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में, जो कि नेचुरल चीजें, जब उनके बारे में समझ पैदा की तो वह कई नई नई बीमारियों की दवाइयां खोज पाया. तो क्या किया, पहले उसने बीमारी के बारे में समझा, पहले उसने नेचुरल जो फिनोमिना है डीएनए और जेनेटिक्स उसके बारे में समझा, उसके बाद में वह नई दवाइयां खोज पाया.
सेम वैसे आज एरोप्लेन्स किस वजह से इंसान बना पाता है या नई नई टेक्नोलॉजी किस तरह से बना पाता है? फर्स्ट, ही हैज टू अंडरस्टैंड द एरोडायनेमिक्स टू डेवलप द फास्टर प्लेन्स। मतलब जो एयर का या जो फ्रिक्शंस का या जो नेचुरल फोर्सेज है उनके बारे में वो समझ लेता है। तो उनको सर पास करने के लिए उनको मतलब उनके अकॉर्डिंग वह नए एरोप्लेन्स बना पाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, इंसान पुल कब बना पाएगा? व्हेन द in human being be able to make the breathing, when he will be able to understand the structure of the earth, structure of the physical environment, just like the wind speeds, water speed, structures of the land, types of the rocks, uh, लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सरफेस। तो इन सब चीजों के बारे में जब इंसान समझ लेगा तो वह नई टेक्नोलॉजी बनाएगा। तो कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इंसान को नेचुरल लॉज के बारे में समझना जरूरी होता है। उसी के बाद में इंसान कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी नई चीज वो बना सकता है। सो यू कैन सी दैट ऑल नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो इंसान को कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए सबसे पहले जो नेचर है सबसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी बनाता जाता है वैसे वैसे इंसान का जो कॉन्स्ट्रेंट्स है, जो नेचर ने उसके ऊपर जो मतलब बाउंडेशंस लगाई हैं उसको वह खत्म करता जाता है, उसको तोड़ता जाता है। जैसे नेचर की बाउंडेशन मतलब जैसे गर्मी, तो इंसान एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही गर्मी को सहन कर सकता है। जैसे इंसान एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही विंटर को सहन कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी बनाता है, जैसे वह नए कूलर्स, एसी, हीटर या जो या कूलिंग सिस्टम्स एंड हीटिंग सिस्टम्स डेवलप करता है, तो वो उन नेचर में जो शेकल्स हैं, जो बाउंडेशंस डाली हुई है इंसान के ऊपर, उसको वो तोड़ के आगे बढ़ जाता है, उनको वह लूज कर देता है। तो if we see in the early stages of their interactions with their natural environment, human beings were greatly influenced by it। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ह्यूमन बीइंग वाज greatly influenced by it and they adapted to the dictates of the nature। जैसा नेचर चाहता था वैसा ही इंसान को करना पड़ता। तब इंसान अगर बारिश है तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था, माउंटेन से तो उनको क्रॉस करके वह दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकता था, ओशियंस की वजह से, समुद्र की वजह से वह एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे नहीं जा सकता था। जिस तरह से जो खाना नेचर में अवेलेबल था उसी को उनको खाना पड़ता था। तो ये क्या था कि द नेचर यूज्ड टू डिक्टेट इट्स लॉज। नेचर अपना जो लॉज है वो इंसान के ऊपर थोपती थी। जैसा नेचर के का लॉज था, फिजिकल एनवायरनमेंट था, वैसे ही इंसान को रहना पड़ता था। दिस इज so because the level of technology was very low and stage of human social development was also primitive। ऐसा किस लिए था? क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, वह टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वो ही कम था। और जब इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, इस तरह की ह्यूमन सोसाइटी होती है, this type of interaction between the primitive human societies and the strong forces of nature termed as the environmental determinism was called as the environmental determinism। जब एनवायरमेंट अपने फोर्सेज की वजह से, अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज की वजह से इंसान को की एक्टिविटीज को डिटरमाइन करता है, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, नेचुरल फोर्सेज की वजह से या फिजिकल एनवायरमेंट की वजह से जब इंसान की एक्टिविटीज डिटरमाइन होती है, कंट्रोल्ड होती है, तो दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। सो व्हाट इज द
the type of the interaction between primitive human society and strong forces of nature. मतलब human societies तो क्या थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और जो नेचर की फोर्सेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह का जब टेक्नोलॉजीज कम होती है और जो नेचुरल फोर्सेज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनेशन। एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और उस जमाने में जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत कम था, वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ द नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। और उस तो क्या था उस जमाने पे, ह्यूमन वाज नेचुरलाइज्ड। ह्यूमन वाज नेचुरलाइज्ड मींस ह्यूमन हैज टू लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर। जैसा नेचर चाहती थी वैसा इंसान को रहना पड़ता था। ही लिसन टू द नेचर, उसको जो नेचर को सुनना पड़ता था। नेचर का जैसा रुख होता था, जैसा नेचर के अंदर एनवायरनमेंट होता था वैसे उसको रहना पड़ता था। एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग, और उसकी जो ताकत थी, जो उसकी नेचर की जो ताकत थी उससे वह डरता था। एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू वर्शिप द नेचर। ही वर्शिप द नेचर। अगर हम जैसे हमारे जो कल्चर की बात करते हैं, इंडियन कल्चर, तो यहाँ पे इन आर इंडियन कल्चर एवरी नेचुरल थिंग इज वर्शिप। नेचर की हर चीज की पूजा की जाती है। एयर इज वर्शिप एज द पवन देव, फायर इज वर्शिप एज द अग्नि देव, वाटर इज वर्शिप एज द जल देवता, everything is worship. Even the sky, the land, trees, plants, everything is worship. Why? Because that time that he used to, because he did not have the understanding of the nature, he did not have the, in the earlier time, the human being did not have the understanding of the natural forces. He used to think that whatever the nature is the supreme power and it cannot be controlled. That's why he used to worship it to lessen the bad impact of the natural process on the human being, ताकि नेचर उनको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो नेचर को वर्शिप करते थे। So this was called the naturalizing of the humans. इसका एक छोटा सा एग्जांपल, एक स्टोरी दी हुई है। This is the story of a girl who used to, or a person who used to live in the forest. What means he is the tribal community. He is from the tribal communities. He completely depends on the nature. He do not have the interaction with the technology. He do not have the developed technology, or the society is not developed. So what they do, they have to depend completely on the nature. Now the another topic, that is the humanization of the nature, we will study the next video.